हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रसाद नाइक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोबेबिलिटीज ओनली। सो प्रोबेबिलिटी अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस. How it works on, now we'll see in question number 1 only. From 1 only it's going to start. So we'll start with the first example. First question here. They have told you that 2 coins are tossed. अगर 2 कॉइन अगर हम लोग टॉस करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 raised to 2. इसका मतलब 4 आउटपुट आना चाहिए सैंपल स्पेस में, करेक्ट. सो अगर 2 कॉइन अगर हम लोग जब टॉस करेंगे इट विल बी आइदर हेड एंड हेड, 2 बार हेड आएगा, नहीं तो टेल और हेड आएगा, नहीं तो हेड और टेल आएगा, नहीं तो टेल और टेल आएगा. ब्रैकेट कंप्लीट. तो कितना आउटकम हो गया हमारा 1 2 3 4. सो वी शुड गेट 4 आउटकम. अगर 3 कॉइन टॉस किया रहेगा तो 2 raised to 3, इसका मतलब 8 आउटकम आना चाहिए. मीन्स 2 into 2 into 2 it will be 8 here. So it should be 8 outcome. But here they told you 2 coins. So outcome will be 4. So मेरा number of element in S is 4. Correct? And they have told you for first condition getting at least one head. So we will be writing it down like this way. Let A be the event. Let A be the event. What they have told you, at least one head that at least one head. एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जहां पे कम से कम एक हेड आना ही चाहिए. Now if you see carefully, एक हेड का मतलब एक से ज्यादा हेड भी आ सकता है. So which will be the elements here? It will be HH, TH, HT. TT नहीं आएगा यहाँ पे. So A is equal to हम लोग लिखेंगे HH, TH, HT, curly bracket close. तो फिर number of elements in A will be how much? You can count it down. It will be 1, 2 and 3. So you can write it down here. Number of elements in A is equal to 3. 1, 2 and 3. Now what they have told you in your question? They have told you to find the probability of A. So we write it down. Probability of A is equal to, मैंने क्या कहा था, NA upon number of element of A divided by sample space का element. So it will be is equal to 3 upon 4. That's it. So question number 1 का सब part 1 उसका आंसर आ गया. Getting at least one head का मतलब you got the answer as 3 upon 4. Now what they told you? Second one, getting no head. So we will be writing it like this way. Let B be the event. Let B be the event that has no head. Correct? So in question they have told you getting no head means we will be writing out let B be the event that has no head. Therefore B is equal to curly brackets open. दो कोई भी हेड नहीं आना चाहिए तो फिर क्या बचा, TT बचा. तो मैं लिखूंगा TNT कर्ली ब्रैकेट क्लोज. देखो यहाँ पे हेड नहीं है तो फिर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होता है 1. तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S. अगर P भी रहेगा तो N भी लिख देने का. अगर P रहेगा तो ऊपर NA आएगा. व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर? PC रहेगा तो N ब्रैकेट C करके आएगा. PZ रहेगा तो N ब्रैकेट Z डिवाइडेड बाय NS. दिस इज कंपल्सरी.
number of element of S will be coming down. It is compulsory for getting the probability. So NB का मतलब number of elements in B कितना है हमारे पास 1 divided by 4. So we are getting the answer as 1/4. So we got both the answers. And in board examinations, it will be there for 3 marks. So very easily you will be getting 3 marks. Now we'll see to the next question, question number 2. So in question number 2, they are given you कि when 2 dice are thrown, जब हम लोग 2 डाई फेंकते हैं तो उसका आउटकम क्या आएगा? So right here like पहला 1 और 1 लिखते हैं, बाद में 1,2 लिखेंगे, 1,3 लिखेंगे, 1,4 लिखेंगे, 1,5 लिखेंगे, 1,6 लिखेंगे, करेक्ट? तो एक नंबर के साथ हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, बाद में हम लोग 2 नंबर लेते हैं. सो राइट हियर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6. एंड हम लोग ने क्या किया? 2 2 2 2 नंबर लिए, उसके साथ 1 2 3 4 5 6. In the same manner, we'll take the next number as 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 like this way. बाद में 3 नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 आ गया. बाद में हम लोग लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. सो 4 नंबर के साथ हो गए. अभी 5 नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 5 1 5 2 5 3 5 and 4 5 and 5 5 and 6. Then the last number is remaining is 6. So in the same manner 6 1 6 2 6 3 6 4 6 and 5 6 and 6 curly bracket close. So like this way we got all the number. जब हम 2 डाई फेंकते हैं तो हमारे पास इतने सब ऑप्शंस आ जाते हैं. So total number of sample space कितना हो गया ये? It is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 are 36. So we are getting here number of sample space S is equal to 36 here. Now what I told you, the sum of the digits on the upper face is at least 10. So we'll write it down. Let A be the event such that the sum of the digit such that the sum of the digits of upper face is, what I told you, upper face is at least 10. Is at least 10. इसका मतलब 2 बार जब हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तब भी उनका जो टोटल रहेगा इट शुड बी एट लीस्ट 10. यानी कम से कम कितना रहना चाहिए? 10 नंबर या फिर 10 से ये ज्यादा भी रह सकता है, डजंट मैटर. सो मेरा A इज इक्वल टू व्हाट? A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन. पहले हम लोग देखेंगे कम से कम 10 कहां पे आएगा? 1 1 1 1 नंबर में तो आएगा नहीं है, 2 2 नंबर में भी नहीं आएगा, 2 and 6 becomes 8, तो ऑप्शन हो गया कैंसर. 3 3 3 3 3 और 5 हो गया 8, 3 और 6 हो गया 9, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा. 4 का नंबर 4 4 4 4 8 4 5 9, 4 और 6 10, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 और 6 का नंबर हम लोग लिख सकते हैं. बाद में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ले सकते हैं हम लोग और 5 6 ले सकते हैं.
5 5 हो गया 10, 5 और 6 हो गया 11, यानी कम से कम 10 चाहिए था, 10 में तो 10 से ज्यादा भी चलेगा। तो वैसे ही 6 4 6 5 6 6 भी ले सकते हैं, 6 और 3 ले लेंगे क्योंकि 6 plus 3 is 9, so we cannot take 9 here. So write it down here as 4, 6, 5, 5 and 5, 6 we will be taking, as well as we will be taking 6, 4, 6, 5, 6, 6. It is like this way and curly bracket is getting closed here. So अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गए यहाँ पे। इफ यू सी केयरफुली, हाउ मेनी आर आवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन काउंट इट डाउन। इट इज 1 2 3 4 5 6. तो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 6। अभी मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए अल्फाबेट है तो उसके सामने भी ए अल्फाबेट आएगा और नीचे एन एस करके आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो फिर मेरा ए का वैल्यू है 6 और एन एस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 36, सो आई कैन डिवाइड इट हियर, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36। तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना आया, इट कम्स टू 1/6। इट इज लाइक दिस वे। सो वी गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ विल सी टू नेक्स्ट वन। दे हैव टोल्ड यू द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। सो विल बी राइटिंग आउट दैट, just I'm rubbing it here. Let B be the event such that the sum of the digit of the upper faces is 33. So I have told you कि दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फिर सम का मतलब होता है एडिशन। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। सो वी विल सी द चार्ट नाउ। सो यहाँ पे 33 नंबर कहाँ पे आएगा, अगर हम लोग सबसे लास्ट नंबर देखते हैं, 1 + 6 हो गया 7, तो 33 नहीं आ सकता है। 2 + 6 हो गया 8, 33 नहीं आ सकता है। 3 + 6 हो गया 9, तो टोटल नंबर 33 आना चाहिए, दोनों को प्लस करेगा तो नहीं आ सकता है। यहाँ पे भी सबसे बड़ा नंबर 4 और 6 है ये कॉलम में, 4 + 6 10, 33 नहीं आ सकता है। 5 + 6 11, 33 नहीं आ सकता है। 6 + 6 12, सो 33 तो आता ही नहीं है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, B be the event such that sum of the digits of the upper face is 33. So like this way. So we have seen here. So does it come as 33? No, it is not coming as 33. So we are writing it like this way. B is equal to curly brackets open, curly brackets close. का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ये हो गया हमारा empty set. Got the concept here? So if it becomes my empty set, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होता है, कुछ नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होएगा, बी अल्फाबेट आया तो इट विल बी, यहाँ पे भी बी आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 0/36 इज इक्वल टू 0। सो फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर बी इवेंट वी गॉट इट एज 0। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, third part, the digit of the first die is greater than the digit of the second die. मीन जो पहला डाई है वो नंबर बड़ा रहेगा नेक्स्ट डाई से। तो फिर हम लोग लिखेंगे लेट, आई एम रबिंग इट हियर, लेट सी बी द इवेंट सच दैट the number
on first die is greater than the number on second die. करेक्ट। यानी जो पहला डाई का जो नंबर है वो क्या होगा, वो बड़ा है दूसरा डाई से। देन द डिजिट, जो क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है, द सेम क्वेश्चन यू हैव टू राइट इट डाउन इन द सेम मैनर। लेट्स सी बी द इवेंट सच दैट, बाद में जो क्वेश्चन दिया वो पूरा क्वेश्चन लिख लेने का। सो नाउ विल सी इन द सैंपल स्पेस में हम लोग जरा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हम लोग को पहला डाई में बड़ा नंबर और दूसरा डाई में छोटा नंबर होना चाहिए। तो विल जस्ट सी द सैंपल स्पेस हियर। सो इफ यू सी द सैंपल स्पेस क्लियरली, सो विच नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर? अगर आप ये पहला कॉलम देखेंगे तो पहला कॉलम में 1 1 1 1 1 1 है, बाद में 1 2 1 2, यानी पहला कॉलम तो हमेशा छोटा ही है, तो ये हम लोग कॉलम नहीं ले सकते। करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉलम लेते हैं, क्योंकि बताए कि पहला डाई का नंबर बड़ा होना चाहिए। तो पहला डाई का नंबर बड़ा किस में आता है, इसमें आता है, 2 1 1 में आता है, 2 2 में आते ही नहीं है। बाद में हम लोग तीसरा देखते हैं, 3 1 आते हैं, 3 2 3 3 3 3 नहीं आएगा इसमें, करेक्ट, क्योंकि दोनों इक्वल है। बाद में 3 4 भी नहीं आएगा। तो हमारा लास्ट नंबर कहां तक आता है, 3 2 3 and 2। बाद में फोर्थ कॉलम में देखते हैं, 4 1 4 2 4 3 तक ही आएगा, 4 4 नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है, बाद में का तो आएगा ही। बाद में फिफ्थ कॉलम में देखते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा, बोथ आर सेम। देन कम टू 6 कॉलम, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं आएगा। सो गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर। क्वेश्चन क्या बताया गए थे कि जो पहला डाई हम लोग फेंकते हैं उसका नंबर बड़ा रहेगा नेक्स्ट डाई से, सेकेंड वाला डाई से। तो इफ यू सी माई सैंपल स्पेस, पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर से, 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 पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर से। करेक्ट। पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर से, इट इज लाइक दिस वे। सो दैट बिकम्स माई sample space. So I'm writing it all the things which are tick marked here. So I'm writing it like this way. C is equal to, so C is equal to curly brackets open, and it will be 2 1 comma, then 3 1 comma 3 2 comma, then 4 1 comma 4 2 comma 4 3 comma, then 5 1 comma 5 2 comma, and 5 3 comma 5 4 comma, then 6 1 comma 6 2 comma, then 6 3 comma 6 4 comma 6 5 till here I will be taking. So number of element in C is equal to how much are they? It is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we are having in total 15 elements in C. It is like this way. So now what we will be doing here? We want the probability. So probability for C is what? Probability for C is NC upon NS. It is 15 upon 36 is equal to, दोनों किसके टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में। तो 3 5 15, 3 12 36। सो मेरा थर्ड इवेंट के लिए द प्रोबेबिलिटी केम एज 5 upon 12 फॉर इवेंट सी, एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट विल बी देयर फॉर 4 marks. So like this way you have to do the sums. Now we'll see to question number 3.